Once again, Eicher opens its doors to welcome women from the road transport industry, and this time it is the actual users of their trucks, drivers. Good morning, friends, and welcome to Trans India Real People, Real Emotions. The special 2-episode feature will cover the 2-day event organized at the Pithampur facility of VE Commercial Vehicles, and the special guests are women truck drivers driving different kind of trucks, carrying cargo across various segments and across this vast country. Eicher is the first company to invite women to the manufacturing facility and exchange notes on trucks, its technology and applications. But this time the audience was different. Actual users of trucks. Often OEMs interact with truck drivers to understand their requirements. However, these interactions are usually at transport nagars or dhabas on the highways. However, Eicher decided to get them to the manufacturing facility, not just to show them how a truck is manufactured, but also to understand their requirements from a woman's perspective and also to know their journey in the industry. This is once again a memorable 2 days that everyone will cherish for a long time. Eicher made the day extra special, with senior leadership gracing the occasion and interacting with the women drivers. Leading the team was Mr. B. Srinivas, MD and CEO VE Commercial Vehicles, along with Mr. Vimal Mulchandani, Executive Vice President Manufacturing Operation, Eicher Trucks and Buses and Volvo Buses, Sachin Agarwal, Executive Vice President Product Development, Eicher Trucks and Buses, Tanveer Javedi, Program Manager CSR Eicher Motors, and of course the man responsible for putting this initiative together, Mr. Bhagwan Bindiganavil. Here are excerpts from day one as Eicher officials welcome women drivers and interact with them. And starting the proceedings on day one is Bhagwan Bindiganavil, stressing upon the fact that men and women both have to carry the baton of economic progress in the country and in the road transport industry. चार साल पहले, 3.5 साल पहले हमने ये सोचा था कि जैसे देश तरक्की कर रही है, ये तरक्की ऐसे नहीं हो पाएगी जिसमें कि आधे लोग जो हैं वो बाहर बैठें। जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जैसे जैसे सड़कें अच्छी होंगी, जैसे जैसे मतलब सुविधाएं अच्छी होंगी, तो इसमें योगदान जो होगा मर्दों का और औरतों का भी साथ साथ ही होगा, नहीं तो ये डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी। अगर आप ये सोचें कि अगर आप आधा कम कर लें लोगों को और पूरी डेवलपमेंट आधी आबादी पे डालें तो उनको दुगना करना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल होता है बहुत जल्दी करने से। तो 3-3.5 साल पहले हम लोग ने फर्स्ट वुमेन ट्रांसपोर्टर्स मीट ऑर्गेनाइज़ किया था, और उस टाइम हमारा सोचना था कि कुछ लोग ही होंगे इस इंडस्ट्री में और कुछ ही लोग आ पाएंगे। लेकिन हमें ये खुशी हुई देख के कि काफ़ी लोग आज की डेट में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में उतर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां चलाते हैं, कुछ जो है अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन कई जो हैं अपने आप नए बिजनेस शुरू किए। तो ये जो सोच थी जब मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी कि इंडस्ट्री जो है यहाँ पे आप सिर्फ रात में काम करना होता है, मुश्किलें होती हैं, वो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें आज सेटल हो गई हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज जो है हालात जो है वो काफ़ी बेहतर हैं, जो कि मतलब 25-30 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, अगर आप ऐसे सोचें। तो उस हिसाब से हमने सोचा, तो हम ये भी देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में जैसे जैसे लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, कनेक्टिविटी टेलीमैटिक्स की बात हो रही है, तो हमने ये भी देखा है कि जो हम लोग जिस तरीके से बिज़नेस करते थे लॉजिस्टिक्स का, वो आगे चल के नहीं होगा। और इसी को साथ लेते हुए आइशर में हमने ये माना कि हम ये लिखेंगे कि नई सोच नए रास्ते। सड़कें ही नहीं हो रही है, खैर हम लोग ट्रक इंडस्ट्री में तो सड़कें अच्छी हैं तो ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा ये सोचना है कि जैसे जैसे हम लोग आगे देखेंगे तो पुरानी बातें, पुराने तरीके जो है वो बदलती जाएंगी और अच्छे के लिए। आज की डेट में अगर मैं घर पे कुछ ऑर्डर करता हूँ तो जब से वो अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे निकलती है वेयर हाउस से और हमारे घर तक आती है, पूरा का पूरा ट्रैकिंग होता है, राइट। और वो इसलिए पॉसिबल है कि आज की डेट में ज़्यादातर ट्रकें जो हैं वो जीपीएस इक्विप्ड हैं, तो हर किसी को मालूम है कि सामान किधर है, कहाँ है, क्या कहाँ जाएगा, एट्सेट्रा।
राइट। तो उसके बाद हमने सोचा कि अगला सेगमेंट क्या है जहाँ पे हम लोग मतलब विमेन और नई सोच जो है वो ट्रांसपोर्ट में, इसलिए हम आपके आभारी हैं कि आप लोग सब आए। राइट, आई मीन इसमें वाकई में मतलब ये हमारे लिए आभार की बात है कि आप लोग समय लेके यहाँ आए हुए हैं। और हमारी उम्मीद ये है कि आज के डेट में जो बातचीतें होंगी और आगे चल के जो बातचीतें होंगी उसके चलते इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ मतलब और अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो आएंगी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में विमेन ट्रांसपोर्टर्स तो मालिकों के तौर से तो आ चुके हैं। आज की डेट में ये भी कह सकता हूँ कि कई जगह मैकेनिक्स काफ़ी जगह शुरू हो गए हैं, क्योंकि ITI में ट्रेन करके हमारे फैक्ट्री में अब भोपाल में जहाँ पे मैं परसों जाऊँगा वहाँ पे हमारी जो छोटी गाड़ी है जो प्रोएक्स है जो नई लॉन्च हुई है उसकी पूरी जो फाइनल असेंबली है सिर्फ ऑल विमेन लाइन पे। और हमारा इसमें यही सोचना है कि अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे लोग चाहिए तो हम ये नहीं सोच सकते कि ये आ सकते हैं लेकिन ये नहीं आ सकती। राइट, ये नहीं हो सकता। जो भी अच्छा काम कर सकता है कर सकती है वो हमारे लाइन पे वेलकम है। राइट, और उसी के चलते आपको आगे चल के अच्छी गाड़ियाँ मिलेंगी, क्योंकि अगर हम किसी को भी लगा दें लाइन पे और गाड़ी का नट टाइट ना हो तो फिर मतलब प्रॉब्लम तो आपको होगी। राइट, तो ये जो चीज़ें हैं ये हर जगह मतलब अब ग्रोथ हो रही है और हमारी उम्मीद है कि आज की डेट के बाद जो कॉन्वर्जेसन होगी ये यहाँ से आएगी। आश्चर्य शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब जब AC कैबिन लॉन्च हुई बाय लॉ जून में, तो कई लोगों ने सोचा कि पुरानी स्टॉक खरीदेंगे लोग, बिना AC की गाड़ियाँ कुछ खरीद लेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी ये वो करके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो तुरंत बाद लोगों ने कहा नहीं, अब कानून आ गया है, AC कैबिन्स आने। आज की डेट में कोई भी ये नहीं चाहता कि गाड़ी जो है पुरानी स्टॉक की उठाए, मतलब बिना AC के जो भी हो हिसाब इनका। राइट, तो ये आजकल तो इसी तरह से आज की डेट में पावर स्टीयरिंग कोई सोचता है नहीं है। मतलब जब मैंने इंडस्ट्रियल शुरू की थी तो अरे बाप रे उसमें कसरत अच्छी निकलती थी। राइट, तो ये सब अब ख़त्म हो गया है। अब आप देखिए कि पावर स्टीयरिंग आ गई, एयर कंडीशन कैबिन्स आ गए। आज की डेट में हमारे जो माइनिंग ट्रक्स हैं, वॉल्वो की तो खैर है ही, आइशर की भी, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस हैं। और ये ट्रांसमिशंस वो वाले नहीं जो कि कारों में लगती हैं, क्योंकि अगर आप सब तो जानते हैं कि कार में अगर जो गियर शिफ्ट होती है वो शार्प नहीं होती और आपको ट्रक में शार्प गियर शिफ्ट चाहिए। तो जो टेक्नोलॉजी वॉल्वो ने शुरू की थी 25 साल पहले और जो आज की डेट में आइशर में है, वो मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग। तो आपको जो गियर शिफ्ट होगा वो बिल्कुल मैनुअल की तरह ही होगा, लेकिन आपको खुद नहीं करना, वो गाड़ी खुद ब खुद गियर शिफ्ट कर लेगी। फैक्ट्री में भी हमने कई छोटी छोटी चीज़ें की। आई मीन राइट, एवरेज हाइट जो होती है जहाँ पे काम होता है फैक्ट्री में, अगर आदमी होते हैं तो इस हाइट पे काम होता है। एवरेज हाइट औरतों को लेकर 5 इंच नीचे किया गया वो काम, ताकि वो जो फैक्ट्री लाइन पे जो काम होता है दैट शुड बी एडजस्टेड टू द पीपल वर्किंग। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, करना भी चाहिए। और आप लोगों के सुन के टोपी जो सेफ्टी कैप्स हैं उसमें बाल के लिए जगह चाहिए। राइट, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। राइट, क्योंकि अगर आप टोपी ठीक से ना पहने तो फिर सेफ्टी इश्यूज होती हैं। राइट, और हमें प्रॉब्लम नहीं है बाल के साथ, लेकिन कईयों को होता होगा। राइट, तो ये सब चीज़ें जो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये सब चलता है। कमर्शियल व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का रोल 2 तरह से होगा। एक तो इस इकॉनमी को बनाने में, सड़कें अपने आप नहीं बनती, ट्रकें बसें बनाती हैं सड़कें, और एक बार सड़कें आती हैं उसकी जो उसके साथ जो फैक्ट्रीज आती हैं, उसके साथ जो घरें बनती हैं, उसके लिए भी ट्रकें बसें चाहिए होती है। तो 2 तरफ से ट्रकें बसें जो हैं वो इकॉनमी से बेनिफिट करती हैं। और ये जो इकॉनमी है, खैर आज की डेट में अगर आप कोई भी अखबार पढ़ें तो फिर मतलब मिडल ईस्ट की इश्यूज़ हैं सबसे पहले, लेकिन ये सब चीज़ें सेटल तो हो ही जाएंगी। और लेकिन जो इंडिया का जो स्टोरी है वो काफ़ी सॉलिड है। और हमारा ये मानना है कि शायद नंबर इधर उधर हो जाए, ये 1 साल इधर चला जाए, 1 साल उधर चला जाए, लेकिन डायरेक्शन सेट। राइट, कि अगले 20 सालों में इंडिया की जो इकॉनमी है बढ़ेगी। और इसके बढ़ने से जो है इसका असर जो है हम सब पे अच्छा ही होगा। ट्रकें अच्छी होंगी, बसें अच्छी होंगी, और लोगों को इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। राइट, जब मैंने पहली बार मैंने कई ट्रकें चलाई हैं। जो पहली ट्रक चलाई थी उसमें ऐसा था कि ओवन के ऊपर बैठे थे,
क्योंकि इंजन वहीं पे था, वो खोला हुआ था, 30 साल पुरानी बात है, राइट राइट। और फिर सीट जो था वो तो बिल्कुल मतलब लकड़ी का था, बिल्कुल एक ये, राइट। उसके ऊपर बैठ के चलाइए तो फिर ये कहाँ से जा रहा था मैं, झांसी से जा रहा था लखनऊ बाय रोड, राइट, इस ट्रक पे उस टाइम पे। अरे बाप रे, मतलब वो समर तो अच्छा, बाहर उतर के ऐसा लग रहा था जैसे ठंड पड़ी है, राइट। तो दैट वाज अ ट्रक, राइट। और आज की ट्रक देखें तो मतलब बिल्कुल ही अदर एक्सपीरियंस है। तो फिर हमारे इंडस्ट्री में देखें तो कई चीज़ें हो रही हैं, और आप लोग तो हर दिन, आप बीती है, आप लोग देखते रहते हो, खैर। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। मॉडर्नाइजेशन की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेगी। एफिशिएंसी जो है, जब मैं शुरू में ट्रांसपोर्ट करवाता था कोई चीज़ तो बोलते थे हाँ दिल्ली से बेंगलोर कोई चीज़ जो है हाँ 15 दिन में मोटा मोटा पहुंच जाएगी, राइट। 15 के 21 दिन भी हो सकते थे, राइट। लेकिन दैट वाज अ रियलिटी। आज की डेट में अगर आप हमारे कस्टमर्स को लें, वो 48 वर्किंग आवर्स में दिल्ली से बेंगलोर पहुंच जाते हैं। हमारी सारी गाड़ियाँ कनेक्टेड हैं और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आता है। जो 2020 में हमने डिसीजन लिया था कि सारी जो BS6 की गाड़ियाँ हमारी हम कनेक्ट करके देंगे। शुरू में कस्टमर्स बोले क्यों पैसा दें आपको कनेक्शन का, राइट। आज की डेट में कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो कि बोलता है कि मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, राइट। और हर कोई जो है आज की डेट में ऐप पे देखता है, हमारा माई आयशर ऐप है, राइट। और उसके ऊपर आपको पता चलता है कि गाड़ी की स्टेटस क्या है, मतलब क्या कोई सर्विस ड्यू है, कोई मेंटेनेंस ड्यू है, मतलब कई चीज़ें। और हम लोग जो ट्रैक करते हैं यहाँ पे, कई बार हम लोग कस्टमर्स से पहले जान जाते हैं कि गाड़ी में कुछ करना है, या प्रेडिक्टिव हम लोग कहते हैं। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा कुछ महीने पहले। एक कस्टमर की गाड़ी एक्सीडेंट हुई, हमें पहले पता चल गया कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है, तो हमारा कनेक्शन था तो हमने वहाँ से एम्बुलेंस भेज दिया गाड़ी के पास। उसके बाद मालिक को फ़ोन किया, बोला कि शायद आपकी गाड़ी एक्सीडेंटेड है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, राइट। तो उन्होंने कहा शायद देख लीजिए, क्योंकि अब नॉर्मल स्टॉपिंग रही है, क्योंकि जो स्पीड पे चल रही थी गाड़ी तुरंत रुक गई है। तो ये ब्रेकिंग से नहीं होता है, ये मतलब कुछ लग के ही हुआ है। तो फॉर्चुनेटली ड्राइवर सब ठीक थे, लेकिन एक्सीडेंट हुआ था। तो ये रियलिटी है, और ये चीज़ें जो है आज की डेट में ट्रैकिंग से काफ़ी बढ़ सकती हैं। इसका दूसरा साइड ये है कि आप टोल मुफ्त में दे सकते हैं। अब तो खैर मतलब आई थिंक टोल हैज़ बिकम क्या दुगना है, दूसरा या तीसरा मोस्ट एक्सपेंसिव, कि आप कहीं ट्रैवल करो तो पेट्रोल के डीजल के बाद तो टोल ही पड़ता है, राइट, टायर से पहले, राइट। तो दिस इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ डिजिटाइजेशन, कि सबको मालूम है कि कितनी गाड़ी चल रही है, कहाँ है। ये जो एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन की बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा ऑफिस दिल्ली में है, और अक्टूबर से लेके फरवरी तक तो मतलब वहाँ पे मतलब हालत काफ़ी ख़राब ही होती है। मतलब इवन इफ़ यू आर हेल्दी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मतलब 20-30 सिगरेट आप पी रहे हो हर दिन के, राइट। तो ये रियलिटी है। तो ये सब चीज़ें बदलेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी, CNG अब अवेलेबल अगर कम होगा तो फिर इलेक्ट्रिक्स पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी आएंगी। BS6 तो आ ही गया, अब बात चल रही है कि अगले 2-3 सालों में या 4 सालों में BS7 आएगा। तो डीजल भी साफ़ होगी। और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ियों में आज की डेट में कई गाड़ियाँ हाइब्रिड की आ चुकी हैं, राइट। तो ये आई थिंक इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में टू परफॉर्म, आप तो बदल ही रहे हैं, और हमें ये देखना है कि हम आपको कैसे सपोर्ट करें, हम आपके साथ कैसे काम करें, ताकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं आपके रियलिटी को मेजर करें, राइट। तो ये काम जो है ये हमारा ये और इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि वी शुड वर्क विद वुमेन ट्रांसपोर्टर्स, वी शुड वर्क विद वुमेन इन द इंडस्ट्री, बिकॉज ऑल दीज रीजंस विल लीड अस टू दिस। तो इन कारणों के वजह से हम ये चाहेंगे कि हमारा बेस, जो एम्प्लॉयमेंट बेस है वो बढ़े, राइट, हमारा कस्टमर बेस है वो बढ़े, राइट। और इसीलिए हम लोग ने आपको इनवाइट किया कि ये जो डिस्कशन हो, ये डायलॉग हो, इसमें हम लोग ये कुछ सोच पाएँ। लेकिन अगर आप मुझे ट्रक दोगे तो मैं आपको 20-30% कम माइलेज दूंगा आपके मुकाबले, राइट। मैं जो गाड़ी चलाता हूँ उसमें गियर ग्राइंड करता हूँ, राइट, गियर शायद ख़राब होंगे, गियर शिफ्टिंग जो होगी वो करेक्ट RPM पे नहीं होगी, राइट। तो मैं जो माइलेज डिलीवर करूँगा आपको या कस्टमर को, वो बहुत बेकार होगी। मतलब लाइसेंस है, ट्रेनिंग था एक ज़माने में, लेकिन अब गाड़ियाँ बदल गई, मैं नहीं बदला, राइट। तो दिस इज़ द रियलिटी। तो अगर कोई मालिक हो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, और अगर गाड़ियाँ बेहतर बनती जा रही हैं, तो इट इज़ नेचुरल कि दे कैन फाइंड
अ लार्जर ट्रांसपोर्ट पूल, ठीक है, ड्राइवर पूल उनको मिलना चाहिए। तो ये जो है ये हम लोग आपसे सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, राइट, ताकि ये ग्रुप इतना छोटा सा ना हो, राइट। एंड आई थिंक इट्स दैट्स द थिंकिंग। तो प्लीज़ फील फ्री विथ योर आइडियाज़, आप अपने आइडियाज़ से फ्री रहें। पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछेंगे गरिमा और आत्मसम्मान के लिए क्या चीज कर सकते हैं जिससे किसी भी व्यवसाय में या किसी भी क्षेत्र में गरिमा भी आए, आत्मसम्मान भी आए, तो कैसे आएगा? तो सबसे पहला जवाब जो होता है वो होता है इंक्लूसिविटी, कि लोगों को एक साथ मिलाना। और किस तरह के लोगों को एक साथ मिलाना? डिफरेंट जेंडर्स के लोगों को एक साथ मिलाना। जब महिला और पुरुष कहीं एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो आत्मसम्मान भी बहुत बढ़ता है और गरिमा भी बहुत बढ़ती है। और ये हमने हमारे प्रोग्राम्स में भी देखा। क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो अभी जितने डीलर्स हैं आयशर कंपनी के अंदर, तो उन डीलर्स पे जब आपने देखा ये सब पुरुष प्रधान व्यवसाय है। चाहे हम बात करें ड्राइविंग की बात करें तो पुरुष प्रधान है, हम बात करें मैकेनिक्स की जो ट्रक सुधार रहे हैं, कार सुधार रहे हैं, बसेस सुधार रहे हैं, तो वो भी क्या है, पुरुष प्रधान है। हमने अभी एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसमें ये पाया कि जब महिलाएं आई तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ गया। और ये इस वजह से नहीं होता है कि महिलाएं कर रही हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़, ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाएं आई तो महिलाएं अपने साथ में कुछ कुछ बहुत अच्छी चीजें लेकर के आई। वो लेकर के आई डिसिप्लिन, वो लेकर के आई हाइजीन, वो लेकर के आई क्लीनलीनेस, वो लेकर के आई अपना जो एक कि हम लोग अगर किसी चीज को करेंगे तो हमारा ये अगर पॉइंट है, एसओपी है, इस एसओपी के हिसाब से हमको करना है तो इसी के हिसाब से करना है, इससे इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। फिर वो जब आई और उन्होंने जब ये सब चीज शुरू की और उनको ये करते हुए जब आसपास के दूसरे पुरुष लोगों ने देखा कि ये ऐसा हो सकता है और ऐसा हो रहा है और इसके ऐसे होने से इतने सारे फायदे हो गए, तो क्या हुआ, अभी हम लोगों के पास में एक नया टारगेट आया कि अब हिंदुस्तान में जितनी भी डीलरशिप है सब पे महिलाएं होनी चाहिए। आप किसी भी तरह से ढूंढो, आईटीआई में जो लड़कियां काम कर रही हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड कराओ। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां जब आ रही हैं, वो महिलाएं जब आ रही हैं और वो जब काम कर रही हैं तो उससे कस्टमर बहुत खुश है। और कस्टमर इसलिए खुश है, टाइम पे काम मिल रहा है, काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कस्टमर जब खुद आता है, अब एक ड्राइवर भी आएगा और उसको अगर एक जगह साफ सुथरी मिल रही है बैठने के लिए, उसको उसकी गाड़ी के अंदर जो समस्या है वो आसानी से समझ में आ जा रही है, उसका निराकरण आसानी से हो जा रहा है, टाइमली हो जा रहा है, जितना टाइम उसको बोला गया कि 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा उतने में हो जा रहा है। तो ये क्या होता है कि जब जो डिफरेंट जेंडर्स हैं, अलग अलग जो स्त्री और पुरुष जब एक साथ मिलकर के किसी भी व्यवसाय में साथ में काम करते हैं तो वहां पे फिर इस तरह का सुधार होता है, एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनता है, एनवायरमेंट बनता है। और वाहन चालन व्यवसाय जो है, ड्राइविंग व्यवसाय जो है, स्पेशली जो ये कमर्शियल व्हीकल का जो ड्राइविंग व्यवसाय, इसमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये आप सब लोगों को पता है। और अभी हम लोग आज सेकेंड हाफ में एक सेशन है जहां पे हम लोग काफी सारी बात करने वाले हैं। कुछ सवाल हैं जो हमें एक मीडिया एजेंसी ने भी दिए हैं कि वो भी जानना चाहते हैं कि इनको पूछिए आप, कि महिलाओं से पूछिए कि ये जब सड़क पे चलती हैं या जब ये इस व्यवसाय में आई हैं तो ये कैसे आ पाई। वो सब चीजें हम बात करेंगे, जब आप मुझसे ज्यादा आप बोलेंगे तब पता चलेगा हम लोगों को। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमने सोचा कि हम क्या सोचते हैं उससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम ये जानें कि आप क्या सोचते हैं और आप इसको आगे कैसा सोचना चाहते हैं। क्या हुआ, जब हम वाहन के आसपास जा रहे हैं हाईवे पे और सोचा कि ढाबे पे रुकते हैं, किसी से बात करते हैं, या जैसे भगवान ने कहा कि उन्होंने गाड़ी चलाई झांसी से लेकर के ग्वालियर तक या लखनऊ तक, उसी तरह से हम लोगों ने अभी रिसेंटली ट्रेवल किया कि हम दिल्ली से मुंबई तक ट्रक में बैठ करके ड्राइवर के साथ में चले, एक बड़े आर्टिस्ट भी हमारे साथ में चले, और हम फिर बेंगलोर से कन्याकुमारी गए और कन्याकुमारी से रामेश्वरम, वैसे भी हमने ट्रक में सफर किया। तो ड्राइवर्स के साथ में जो इंटरेक्शन हुआ, जो गाड़ी चला रहे थे उनके साथ में जो इंटरेक्शन हुआ, वो बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिली, नई नई चीजें पता चली कि वो कैसे डिसाइड करते हैं कहाँ पे रुकना है, क्यों रुकना है, और टाइम कम है तो भी हाय हेलो करते हुए ही क्यों जाना है। वो चीजें भी कई जगह लगी। या फिर कई है कि कहीं नहीं रुकना है, जैसे इंदौर से नागपुर जाना है, अभी आपने जैसे बताया कि आप सब्जी का ट्रक चलाते हैं, है ना, तो यहाँ पे वही है कि इंदौर से नागपुर अगर धनिया भर गया एक बार गाड़ी के अंदर तो फिर क्या होगा, नॉन स्टॉप। तो वो जो सारी चीजें हमको पता चली, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। और फिर तब लगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा वहां पे नहीं सोचा जा रहा है। तो उस सोच को, कि वो जो सोच रहे हैं और हम जो सोच रहे हैं, उसको कैसे एक ब्रिज बना करके एक जगह पे लाया जाए और कैसे कुछ बहुत अच्छा किया जाए, तो वैसा सोचना बहुत जरूरी है, वैसा कुछ करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये एक मुहिम है कि हम लोग सबसे पहले आप लोगों से जुड़े हैं, आप लोगों को यहाँ बुलाया है, आपको निमंत्रण है, तो आप पहले तो ये देख पाए कि यहाँ पे जो ये कंपनी में गाड़ियां बन रही हैं वो बन कैसे रही हैं। और अभी जैसे एक अप टाइम सेंटर की हमने बात की, तो वो अप टाइम सेंटर को जब आप देखेंगे
तो अप टाइम सेंटर में अब जो BS6 की गाड़ियां हैं, अगर कोई वाहन जो ले रहे हैं, जो परचेस कर रहे हैं, वो हमें कंसेंट देते हैं कि वो चाहते हैं कि हम उनको ट्रैकिंग करके दें, तो ट्रैकिंग हर चीज की है, ब्रेकडाउन की भी ट्रैकिंग है। ब्रेकडाउन की ट्रैकिंग, क्योंकि आप जो लोग गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी के व्यवसाय में, उनको पता है कि ब्रेकडाउन की ट्रैकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये पता हो कि 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 100 किलोमीटर बाद में ये गाड़ी में समस्या आने वाली है, ये आपको पहले से पता है, तो फिर आपको पता है कि आप क्या करोगे, आपको सर्विस सेंटर पे जाके क्या काम कराना है। और आपको वो ट्रैक करना अगर आ गया कि ये कैसे मुझे सिग्नल आ रहा है, ये कैसे मुझे, और वो चीज अगर आपको एक और एडिशनल सपोर्ट से मिल जाए कि आपके पास में एक मोबाइल है, उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको बता दिया जा रहा है कि आपकी गाड़ी में आपका जो इंजन ऑयल है वो 50 किलोमीटर बाद आपको चेंज कराना है, तो उससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। तो उस लेवल की जो सुविधाएं हैं अप टाइम सेंटर के थ्रू, और चलती हुई गाड़ी में, आप इंदौर से आपने गाड़ी ली है, या दिल्ली से आपने गाड़ी ली है, या मुंबई से आपने गाड़ी ली है, और आप बेंगलोर पहुंचे हुए हैं, और वहां पे चलती हुई गाड़ी में आपको आता है कि अभी आप यहाँ बेंगलोर में हैं, बेंगलोर में आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं उस जगह से 20 लोकेशन हमारे पास की हैं जहां पे आप जा सकते हो, और आप ये काम गाड़ी में जो कराने हैं आपको अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, वो करा सकते हो, आप चूज करो। तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, वो दूसरे सभी जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उन सबके लिए बहुत आसान हो जाता है, और जो गाड़ी के ओनर हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो वैसी भी सारी चीजें हैं। तो कुछ आपसे सीखना, कुछ आपको दिखाना, और उसके बाद भी निरंतर आपके संपर्क में रहना, कि बाद में भी आप अगर कुछ सुझाव ऐसे देना चाहें जो आपको लगता है कि जिससे ये जो पूरा व्यवसाय है या जो समुदाय है, ड्राइवर जो समुदाय है, उस समुदाय के अंदर हम कैसे इन 2 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रख सकते हैं और इनको इंप्रूव कर सकते हैं, गरिमा और आत्मसम्मान, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक आम आदमी जब सड़क पे ट्रक ड्राइवर को देखता है तो वो वैसे क्यों ना देखे जैसे एक ड्राइवर को स्वीडन में देखा जाता है, या अमेरिका में देखा जाता है, या जापान में देखा जाता है। जब कोई बहुत बड़ी, आप जैसे आपने कहा 40 फीट ट्रेलर आप चला रहे हैं, तो 40 फीट ट्रेलर चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, एक आर्ट है। एक आर्टिस्ट आता है, पेंटर आता है, और वो स्केच का स्ट्रोक मारता है या ब्रश का स्ट्रोक मारता है तो लोग ताली बजाते हैं उसको देख करके। एक 40 फीट ट्रेलर वाला जब एक रिवर्स पार्किंग में गाड़ी लगाता है तो उसको देख करके वो ताली नहीं बजाता, लेकिन वो रिवर्स पार्किंग में लगाना वो उस आर्ट से कम नहीं है ना। क्योंकि आपका जैक नाइफ अगर एक बार लग गया एक 40 फीट ट्रेलर में तो क्या ही होगा, कैसे गाड़ी निकलेगी, तो वो जो चला रहा है बस वही बता सकता है कि कैसे निकलेगी, वो उसी के बस की बात है। तो वो एक बहुत बड़ा कलाकार है। अभी ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि हम लोग उतना सम्मान हमारे जो कलाकार हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको नहीं दे पा रहे हैं, बट वो वैसा होना चाहिए। जैसे आज अगर आप देखेंगे बाहर के देशों में वैसा ही मिलता है। उन लोगों को जो 40 फीट ट्रेलर्स चलाते हैं तो उनको उस नजर से देखा जाता है कि अरे ये कुछ बहुत महान काम कर रहे हैं। आज की डेट में जीएसटी के चलते अगर मैं अपने एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में बिना सेल के किसी चीज़ को मूव करूं, इट इज़ ए जीएसटीबल इवेंट, उसमें जीएसटी दिखाना होता है, राइट। ऑफ कोर्स वापस मिलता है, लेकिन एक फैक्ट्री, सो गुड्स मूवमेंट पे ही ये आ गया। पहले ये था कि जीएसटी शुरू हो गई, उसके बाद अब ई वे बिल मैंडेटरी होने शुरू हो गए। तो ई वे बिल के चलते वो जो पूरा प्रोसेस है कि जो सामान एक जगह चलता है दूसरी जगह पहुंचता है, वो जो है वो फॉर्मलाइज होता जा रहा है। आप लोग शायद देखते होंगे आइकिया में जब आप एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस जाएंगे, इट इज़ 5 साल पहले और आज में बहुत फ़र्क पड़ गया। पेपर वर्क और इनवर्डिंग जो इनबाउंडिंग करते हैं, आउटबाउंडिंग करते हैं, बहुत फ़र्क पड़ गया। ये जो जर्नी है ये अभी सरकार ने, क्योंकि आप बस भी चलाते हैं उसके बारे में बता सकता हूँ, अभी सरकार ने नया रूल लागू किया है कि स्लीपर बस की बॉडी या तो OEM बनाए या फिर कुछ चंद गिने चुने बॉडी बिल्डर जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से। ये जो चलती आ रही थी बात कि कोई भी बस बॉडी बना दे स्लीपर और वो आग लग जाए, ख़त्म। अगर आप वॉल्वो फैक्ट्री आएंगे आप देखेंगे कि उसमें जो बस में जो लकड़ी लगती है वो भी फायर रिटार्डेंट है, राइट। ज़मीन में लकड़ी जो पड़ती है बस में, उसको भी ट्रीट किया जाता है कि आग ना लगे उसमें, राइट। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, अब AC कैबिन्स आई, अब AC कैबिन के चलते अब वो पुराने ज़माने के जो वुडन कैबिन्स हैं वो कम होंगी। उसका और एक कारण भी है, अगर आप गाड़ी 20-30 किलोमीटर घंटे चलाएं तो आपको एरोडायनेमिक से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप वही गाड़ी जैसे आप बता रहे थे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में, अगर आप 70-80 किलोमीटर्स पे चलाएंगे, एरोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका 2-3-4% जो है फ्यूल एफिशिएंसी निकल आता है।
तो अगर आप फैक्ट्री डिज़ाइन कैबिन चलाएं जो कि पूरा का पूरा टर्न्ड है, कर्व्ड है, उसमें जो आपकी एफिशिएंसी निकलेगी वो वुडन कैबिन में नहीं निकलेगी, क्योंकि वुडन कैबिन जो है वो फ्लैट होगा, उसका एड्ज ये होगा ना। अब तक हम लोग ये सोचते थे इंडस्ट्री में कि ठीक है 20-30 हज़ार रुपये बच गए कस्टमर के, उन्होंने वुडन कैबिन बनवा ली, 50,000 बच गए, जीएसटी बच गया, क्योंकि अभी तक ये रूल था पुरानी जीएसटी में कि प्राइवेट बॉडी बिल्डर जो 18% पे करते थे, फैक्ट्री से 28 पे निकलता था। अब वो भी ख़त्म हो गया, सब पूरा का पूरा जो हिसाब है वो 18% पे हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंडस्ट्री को फॉर्मलाइज करेंगी, और ये जो हम लोग नई सोच, नए रास्ते की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री जो है अगले 10 सालों में बहुत अलग दिखेगी, और इस इंडस्ट्री में सबका योगदान होगा, और यही आगे चल के जो है वो डिफ़ाइन करेगी हमारे को। तो दोपहर में मैं रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे जाना है इंदौर 4:30 बजे। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चंस हैं? मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। नहीं वाकई मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है इस मामले में, क्योंकि ये जो है ये ज़रूरी भी है। और देखिए भोपाल में हमारा एक्सपीरियंस बहुत सिंपल था। हमने जो ऑल वुमेन लाइन बनाया उसमें जो हमने प्रोसेसेस डाली, जैसे तनवीर कह रहे थे डीलरशिप में, उसमें सबका फ़ायदा हुआ। ये नहीं था कि उसी लाइन पे उन्हीं महिलाओं का फ़ायदा था। उन प्रिंसिपल से कई चीज़ें हुई। फैक्ट्री में काम क्या होता है, यहाँ से सामान उठाओ, ये लाइन चल रही है तो उसके ऊपर डालिए और उसके बाद टाइटन कीजिए, राइट। तो ये काम होता है फैक्ट्री में, राइट। चाहे वो नट बोल्ट हो, चाहे वो इंजन हो, एक जगह से उठाइए दूसरी जगह रखिए, उसके बाद उसको असेंबल कीजिए ना। अगर आप किसी भारी चीज़ को ऐसे उठाएं, आपको यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या किया, वो जो जिस डॉली के ऊपर वो जो पीस आती थी उसमें एक छोटा सा गैप बनाया, तो उसमें आप जाइए और फिर ऐसे उठाइए, तो आपको उतना प्रेशर नहीं पड़ता उठाने में, राइट। तो ये सबको फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं भी बुढ़ा होता जा रहा हूँ तो बैक तो जाता ही है, राइट। रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट। पीठ सब तो मतलब दर्द करने लगता है, राइट। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं हर किसी के लिए, और ये आएंगी ज़रूर। करेक्ट। We will continue coverage of this exclusive plant visit for women truck drivers on the other side of this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. कभी सोचा अगर किसी दिन सब कुछ रुक गया तो? इन छोटी छोटी खुशियों पे, लाइफ पे ब्रेक लग गया तो? किसी ने तो जिम्मेदारी ली होगी कि सब स्मूथली चलता रहे। कोई ऐसा जो ऐसे स्टीयरिंग थामे हैं कि हम ना रुके। जो वक्त से आगे की सोच रखता हो, नए रास्ते बनाता हो। शुक्र है जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कोई तो बैठा है, क्योंकि जब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। आयशर के साथ रहिए 24/7 कनेक्टेड, ताकि ना आपका बिजनेस रुके, ना लाइफ, नई सोच, नए रास्ते।
Welcome back to part 1 of this very special coverage of the first ever women drivers trip to Eicher's manufacturing facility. You are watching Trans India, real people, real emotions. एक और चीज़ बस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग जो CSR, जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, तो उसमें हमारा जो सोशल मिशन है वो सोशल मिशन भगवान उस पर और ज़्यादा उसको अच्छे से आप लोगों को समझा पाएंगे। वो हमारा यही है कि हमको ट्रक ड्राइवर्स जो हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स जो हैं उनके वेलबींग के लिए, उनके उद्धारीकरण के लिए हम लोगों को उसमें काम करना है। और अभी हम लोग पिछले 10 सालों से उसमें लगातार काम करते आ रहे हैं। एक इनिशिएटिव हमारा है जिसको हम कहते हैं आयशर ड्राइवर आई केयर। तो ये इस इनिशिएटिव में हमारे पास में एक संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट एरिया है वहाँ पे एक स्टैटिक सेंटर है जो श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के साथ में मिलकर के हम लोगों ने डेवलप किया। उसके अलावा देश भर में 13 मोबाइल मेडिकल वैन्स चलती हैं, तो उसमें बीपी, शुगर, आई, ईयर, ये सब टेस्टिंग्स जो हैं वो ट्रक ड्राइवर्स के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स के लिए, उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो किसी को सुविधा नहीं मिलेगी, तो वो सुविधा उनको मुफ्त में प्रोवाइड की जाती है। और अगर किसी की आंखों में चश्मे की ज़रूरत होती है तो उनको चश्मा वहीं पे अवेलेबल कराया जाता है। तो वो जो 13 सेंटर्स हो गए मोबाइल मेडिकल वैन्स के, जो ट्रांसपोर्ट नगर एरियाज़ में या फिर ट्रांसपोर्टर्स के पार्किंग यार्ड्स में जाकर के ये फैसिलिटी देते हैं, ये सुविधा देते हैं। उसके अलावा टोटल 48 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है अक्रॉस द कंट्री जो इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो जो ड्राइवर समुदाय के लोग हैं वो कभी भी उन 48 हॉस्पिटल्स के नेटवर्क में जाकर के ये अपनी आंखों का और अपने कानों का जांच जो है वो करा सकते हैं। और आंख और कान ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी हैं ड्राइविंग के लिए। सड़क सुरक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो जो रोड साइंस है वो देखने में दिक्कत है, रोड की कंडीशंस को देखने में दिक्कत है, बीम्स को समझने में दिक्कत है अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो। और कॉर्नरिंग विजन में अगर इशू है तो फिर लेफ्ट और राइट में कौन जाएगा वो हम बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालने में। तो इसलिए आंखों की जांच बहुत इंपॉर्टेंट। उसी तरह से ईयर्स, अगर हमको बराबर सुनाई नहीं दे रहा है, कोई पीछे से बहुत देर से हॉन्किंग कर रहा है, हॉर्न हमको नहीं सुनाई दिया, तो वो अपने आप में एक बड़ी मुसीबत होती है ड्राइविंग में। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब हम बड़ी गाड़ियां चला रहे होते हैं, सड़क पे होते हैं बहुत लंबे लंबे समय तक, तो इतना हॉर्न और इतना शोर शराबा सड़क पे सुनने को मिलता है, उसकी वजह से कान में परेशानी शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि एक रेगुलर चेकअप जब होता है आँख का, कान का, तो इससे ड्राइवर समुदाय को एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, उसकी बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर्स अगर बता दें कि ये वाला पर्टिकुलर जो है आपको एक ड्रॉप जो है वो डालना ही डालना है, तो उससे आपको बेनिफिट, क्योंकि आपका जो व्यवसाय है वो व्यवसाय शोर शराबे से भरा हुआ है, धूल मिट्टी से भरा हुआ है। आप बहुत एक्सपोज होते हैं धूल से, मिट्टी से। आप कहीं भी गाड़ी पार्क करते हैं तो पार्किंग ही आपका कच्ची ज़मीन के ऊपर है, जैसे ही नीचे उतरेंगे सीधा धूल मिट्टी है, शोर शराबा इतना है। सड़क पे है तो हॉर्न, इंडिया में अभी क्योंकि नो हॉन्किंग वाला सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं किया जाता उसका पालन तो वो एक दिक्कत। हॉर्न प्लीज लिखा रहता है। एग्जैक्टली। तो ये कुछ परेशानियां हैं जिनकी वजह से ये जो एक प्रोग्राम है वो पूरी तरह से हम लोगों का ड्राइवर समुदाय के लिए है। उसके अलावा एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का प्रोग्राम है। जैसे कई बार क्या होता है कि अब जैसे आयुष्मान कार्ड आज की डेट में एक बहुत बड़ी सुविधा है। अगर आपके पास में है और कल को, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है हेल्थ के लिए कहीं जाने की, किसी अस्पताल में इलाज करने की, प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड चलता है, 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई ड्राइवर परिवार हिंदुस्तान में ऐसा ना रह जाए जिसके पास में आयुष्मान कार्ड ना हो। तो उस पे हम लोग उन वैन्स के थ्रू भी, उसके अलावा भी उस पे काम कर रहे हैं। और कुछ और कार्यक्रम हैं जो हम उसमें करना चाहते हैं, जिनको हम कल्चरल इंक्लूजन का कार्यक्रम, जैसे आज का ये भी कार्यक्रम जो है वो एक कल्चरल इंक्लूजन का कार्यक्रम है कि हम ड्राइवर समुदाय के साथ में सीधा जो महिला ड्राइवर्स हैं उनके साथ में एक सीधा वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ और इनिशिएटिव्स जो हैं हमारे कल्चरल इंक्लूजन के, वो हम करते रहना चाहते हैं। उसके लिए भी जो आपके इनपुट्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि कैसे उसको सोचना है और कैसे उसको डेवलप करना है, ताकि हम लोग जो चाहते हैं बदलाव, वो बदलाव लेकर के आ पाए। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और गाड़ी चलाना भी उसी के एक मजबूत उदाहरण है। आप सिर्फ ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आप एक आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण हैं। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो गाड़ी चलाना हमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता देता है। एक छोटी सी बात, मैं बस एक ही बात करना चाहूँगा
सुरक्षित ड्राइविंग जरूर करिए, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ महिलाएं भी मोबाइल यूज करते रहते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि ये मेल की प्रॉब्लम है, अभी ये फीमेल को भी लग गया, और आप लोग सही तरीके में चलिए। आप हमेशा सीट बेल्ट लगाइए, ट्रैफिक नियमों की पालन करिए और धैर्य के साथ गाड़ी चलाइए। आप अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल है। आपको देखकर और भी महिलाएं प्रेरित हो जाएंगे, और आपको देख के मेरा भी बहुत मन खुशी हो रहा है। आपकी कहानी तो मैं अलग से समझ भी लूंगा आपसे। आत्मविश्वास के साथ चलिए, सुरक्षित चलिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम जैसे बताया विमल मूलचंदानी है, और मैं मैन्युफैक्चरिंग जो ट्रक आपको मिलते हैं और कार, मतलब कार तो हम नहीं बनाते, ट्रक और बस जो आप बनाते हैं वो मेरी जिम्मेदारी है आयशर के लिए। तो जैसा अभी इंक्लूसिविटी की कुछ बात करें तनवीर की, जैसे आज से अगर 10 साल पहले देखें, इंदौर तो आपने देखा है, बाकी लोगों ने दिल्ली भी देखा होगा, 10 साल पहले जैसे मॉल में या कहीं पे भी नौकरी या सेल्स का काम कुछ करना है, मैन्युफैक्चरिंग काम करना, तो इट्स ओनली लड़के। कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, मजदूर से लेकर ऊपर तक ज़्यादातर लड़के रहते हैं। तो अभी आप धीरे धीरे देखेंगे मॉल्स हो गए, ज़्यादातर लड़कियां काम करती हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी भी ऐसा लगता है कि मजदूरों का हम्मालों का काम है। एंड वहीं हमने सोचा कि अगर हम्मालों का काम है तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए जो सबके लिए बराबर हो, जगह ऐसी हो जहाँ पे सब लोग मिलजुल के काम कर सकें। हम बात करते हैं इक्वलिटी, कंधे से कंधा मिला के चलने वाले की, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं करें वो काम। तो अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन फोर्स को इन्वॉल्व करना चालू किया मैन्युफैक्चरिंग में। वहाँ फिर हमें ज़रूरत लगी कि कुछ बहुत सारी चीज़ें, इट्स सब स्ट्रक्चर है, भगवान ने ऐसा बनाया है, बड़े जहाँ हैवी चीज़ें हैं वहाँ पे हमने ऑटोमेशन करना चालू किया है, ताकि कोई भी लाइन पे हम अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय को लगाए, वो कोई सी भी गाड़ी, कोई सा भी काम करने में सक्षम हो। तो इसको हमने करते हुए सबसे पहले हमने भोपाल प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया। अगर आप लोग भोपाल, जब भी आपको मौका मिले भोपाल या आपकी पूना की गाड़ी या आपकी लॉजिस्टिक की गाड़ी भोपाल से गुजरे तो भोपाल प्लांट रुके। भोपाल में पूरी की पूरी लाइन जो ट्रक बनाती है सिर्फ और सिर्फ औरतें काम करती हैं। वहाँ पे कोई आपको लड़का नहीं मिलेगा। वहाँ पे सप्लाई करने का पार्ट से लेके गाड़ी बनाने से इंस्पेक्शन और गाड़ी मूव करने का काम, वहाँ पे जो ड्राइवर है सब औरतें हैं। दैट इज व्हाट हमने सबसे पहला काम चालू किया। बट अब यहाँ पे भी हमने वही काम चालू किया, बट ऐसा अब धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा भोपाल प्लांट में कि ये वुमेन डोमिनेटेड प्लांट हो गया, उल्टा हो गया है। तो हम आपको हाइब्रिड बना रहे हैं, हम आपस से उसको हम बोल रहे हैं कुछ लड़के भी साथ में काम करें तो इक्वलिटी की फीलिंग आ जाए। तो ये कमाल कर दिया लड़कियों ने वहाँ आके कि वहाँ पे वुमेन डोमिनेटेड दिखने लगी। और आपको बता दूँ ये प्लांट 40 साल से बन रहा है हमारा, 40 साल से यहाँ गाड़ी बनाते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं। जब हम बात करते हैं गाड़ी क्वालिटी की बात करें, बिल्कुल सही गाड़ी हाथ में मिलनी चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। जो 40 साल से लोग बना रहे हो भोपाल में, आप जैसी महिलाएं जो पिछले सिर्फ 2 साल से गाड़ी बना रही हैं, उसकी क्वालिटी यहाँ से एटलीस्ट 10% बेटर आ रही है निकल के आज की तारीख में। तो आप लोगों का धन्यवाद इस सब चीज़ों के लिए। आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम, भोपाल आइए, भोपाल का हमारा प्लांट देखिए एंड यू विल फील मोर एनकरेज हैं। भोपाल में आपने क्या देखा, हबीबगंज स्टेशन देखा है आपने? तो हबीबगंज से थोड़ा सा आगे जाएंगे, भोजपुर की तरफ जाते हैं, भोजपुर और हबीबगंज के बीच में बिल्कुल ये प्लांट। तो हबीबगंज से आपको मुश्किल से आप 20 मिनट में पहुंच जाएंगे उस प्लांट। कभी भी आप जाएं, हमारी टीम है, तनवीर है, सब लोग हैं, हम ऑर्गेनाइज कर देंगे आपके। आइए आप लोग कभी भी आप। सो थैंक यू। तो सबसे पहले तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इस बिज़नेस में आ गए हो गाड़ी चलाने में। ऐसा नहीं कि आप लोग आ गए हो इसलिए खुशी हो रही है, इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि मुझे मालूम है कि अब आप लोग जब गाड़ी चलाएंगे तो डेफिनेटली हमारी गाड़ियाँ एक लेवल ऊपर जाने वाली है। आज कार्स में लोग इतने सारे फीचर्स देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, क्यों देखते हैं? आई डोंट थिंक कि यदि केवल आदमियों को गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, तो वो इतना ज़्यादा चिंता करेंगे। वो चिंता इसीलिए करते हैं क्योंकि साथ में फीमेल्स हैं, चाहे वो वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, डॉटर हो सकती है, उनको वो फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब आप लोग जब इस सेक्टर में आ रहे हैं, ट्रक्स में, बस में, तो डेफिनेटली ये सब फीचर्स की रिक्वायरमेंट और जो इम्पोर्टेंस है वो निकल के आएगा जब आप लोग इस सेक्टर में आएंगे। दूसरा जो एक हमारे ट्रक्स में स्पेशली हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, ड्राइविंग सेफ एंड ड्राइविंग एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीकल। उस चीज़ में हम जब मेल ड्राइवर होते हैं उसमें हम दोनों तरीके के ड्राइवर देखते हैं। अच्छे भी ड्राइवर होते हैं बट बहुत रैश ड्राइवर भी होते हैं। एंड व्हेन वी हैव फीमेल ड्राइवर, तो बाय नेचर फीमेल्स आर वेरी केयरिंग,
तो जैसे आप लोग फैमिली का केयर करते हैं, बाकी लोगों का केयर करते हैं, डेफिनेटली आप लोग अपनी गाड़ी का भी केयर करेंगे। और मतलब मुझे आज से पहले नहीं मालूम था कि ट्रक में, आप लोगों ने बोला कि ट्रैक्टर टेलर भी चला रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं मालूम था आज से पहले। सीरियसली आई वाज नोइंग अबाउट बसेस एंड स्मॉल व्हीकल, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि बड़ी गाड़ियाँ भी आप लोग चला रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को होगा मेरे पर्सनली आप लोगों से, आप लोगों के फीडबैक। आप लोग 2 दिन हैं यहाँ पे, जो भी आप लोगों के फीडबैक होंगे वो कैप्चर करेंगे। प्लीज़ आप ओपनली शेयर कीजिए। आज देखिए आप लोग बहुत कम है, 7-8 लोग हैं यहाँ पे, शायद ऑल ओवर इंडिया में भी 50-100 ही होंगे जो ड्राइव कर रहे हैं। बट एक बार शुरुआत हो गई ना तो ये बहुत फास्ट ग्रो होने वाला है। डेफिनेटली अगले 3 साल में वी विल सी कि एटलीस्ट 5% ड्राइवर फीमेल ड्राइवर हो जाएंगे। डिजाइन करने पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, फीमेल भी तो चलाएंगे। दैट इज़ व्हाट माय इंटरेस्ट इज़। मेरा इंटरेस्ट यही है कि मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूँ कि जो भी आप 2 दिन में जो फीडबैक देंगे वो हमारे लिए अर्ली फीडबैक है, शुरुआत का फीडबैक है। हम इन फीडबैक्स को आज लेके अपने ट्रक्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे 2-3 साल बाद जब ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन ड्राइवर हो जाएगी तब वो केवल हमारी गाड़ी प्रेफर करेंगी। तो हमारा इंटरेस्ट है, तो मैं पर्सनली लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों से अच्छे फीडबैक मिलेंगे, अच्छे इनपुट मिलेंगे। और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, मुझे भी इंदौर में जब बस चलाते देखते हैं तो मेरी एज बहुत कम है अभी, तो मतलब उनको देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतनी छोटी होके इतनी बड़ी बस चला रही है। मतलब वो सोचते हैं कि मतलब नहीं कर पाएगी, पर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत अच्छे से ड्राइव करती हूँ। और मैं डेली 250 से 300 पैसेंजर रोज डेली हमारा अपने डेली का अप डाउन है हमारा। पैसेंजर हम डेली अप डाउन कराते हैं। डेली उनके मतलब समय पे उनकी जगह पे प्रॉपर उनको सेफ्टी से पहुंचाते हैं हम लोग। मैं जब बस चलाती थी तो ये मैडम मुझे बाहर से देखते थे, ये रोज आते थे, मुझे इंडस्ट्री हाउस में मिलते थे, मैडम आपकी बस में आना है मुझे। रोज मेरी बस में ट्रैवल करते थे तो मेरे पास ही खड़े रहते थे हमेशा। इनका सपना पूरा करने के लिए जब इनको मैंने कहा कि आप अंदर जाके फॉर्म भरो, तो ये सब में छोटे थे। वैसे आई बस में हमारे यहाँ सबसे छोटी ड्राइवर यही है जी। तो इनका सपना ऐसे ही पूरा हुआ है। इनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साढ़े 3 साल हुए हैं। लाइसेंस ले, शाम में आप बात करेंगे, लेकिन लाइसेंस लेते हो आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस टाइम कि मतलब एक हेवी व्हीकल का लाइसेंस प्राप्त हो रहा अपने को, इसलिए बहुत मतलब प्राउड हो रहा था अपने ऊपर भी। परेशान तो नहीं किया? नहीं, जो मतलब लाइसेंस पास कर रहे थे उस समय आरटीओ में मेरा, तो वो सर हैं वो बोलते आप इतने छोटे आप गाड़ी चला लोगे? तो मतलब उस टाइम मेरी एज भी मतलब 22 ईयर्स थी। हाँ, तो सर बोलते आप चला लो। मैंने जी सर, आप मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे ऊपर मैं कर सकती हूँ। तो सर बोलते मैं आपके साथ बैठूंगा। तो जो आइसर की ये गाड़ी थी ना कंटेनर वाली, सर मेरे साथ में उसमें पास में बैठे, फिर उन्होंने मुझसे ट्रायल में पी बनवाया। अच्छा जी, पहले सीधे बनवाया, फिर उन्होंने रिवर्स में बनवाया। उसमें मतलब हम लोग 15 जने थे वहाँ पे, तो उसमें 14 जेंट्स थे और लेडीज़ में अकेली थी वहाँ पर। मतलब उसमें से सिर्फ 2 जेंट्स और 1 लेडीज़ में मैं ही अकेली पास हुई थी वहाँ पर। जब वो उतरे जब वहाँ से ना, तो मुझे फिर बुके दिया उन्होंने। बोलते आपने बहुत अच्छा मतलब करा कि मतलब आपको देख के लगा नहीं था कि आप कर पाओगे, पर आप फर्स्ट बार में मतलब पास होके निकल गए। आज़ाद फाउंडेशन से ड्राइविंग सीखी थी मैंने। तो उस टाइम पे जब ड्राइविंग के लिए आज़ाद फाउंडेशन वाले घरों में आते थे कि आप क्या ड्राइविंग सीखेंगे, उस टाइम पे लड़कियां नहीं निकलती थी इस लाइन में, बहुत ही कम निकली थी। तो उस टाइम मैंने बोला ठीक है मैं सीखूंगी, लेकिन मुझे ये लग रहा था ड्राइविंग सीखूंगी कैसे मैं, बहुत मुश्किल काम लगेगा ये तो मतलब करना, क्योंकि लड़कियां ही नहीं है इस लाइन में। जब मैं निकली मैंने देखा तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने जब 10वीं पास की उस टाइम पे फिर कोई और दूसरा काम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे पार्लर करना और सिलाई वगैरह काम, यही काम ज़्यादातर लड़कियां उस टाइम पे कर रही थी। तो मुझे ड्राइविंग का शौक़ इसलिए था कि अलग अलग जगह जाऊंगी, ड्राइविंग करूंगी, इस काम में नई नई चीज़ें सीखेंगे, तो इसीलिए मैं इस लाइन में आई थी। कुछ हट के अलग काम करना है। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल कंपनी सुपरवाइज़र थी और जॉब छोड़ के मैं ये सब इधर आ गई।
शुरुआत शुरू में मैं रिक्शा चलाती थी, अभी भी रिक्शा चलाती हूँ, मगर फिर भी मैंने ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस शुरू कर दिया। पूना में भी मैं बस चलाती हूँ। अगर अब R&D की बात करेंगे तो मुझे लगता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं नीतू मैम से बात कर रही थी, तभी हमारा वॉशरूम के रिलेटेड थोड़ा बात चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अगर आप R&D में जाके ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे कैरेवन रहता है, कैरेवन में टॉयलेट बाथरूम अंदर ही रहता है, तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जब लेडीज़ लॉन्ग ड्राइव करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ढाबे पे वो रुक नहीं सकती, नाइट को रुक नहीं सकती, उनको थ्रू वो गाड़ी चला सकती है, मगर वो जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर उस जगह पे कुछ कर सकते हैं, या आयशर अगर किसी से टाइप करके कुछ जगह ऐसे बना सकते हैं कि उधर उनकी अच्छे से वो यूज़ कर सकते हैं, उनकी सेफ्टी भी ध्यान में रख सकते हैं, तो मुझे लगता है हम सभी के लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये किसी की गाड़ी में नहीं है, बस कैरेवन में रहते हैं, मगर कैरेवन तो इतना नहीं चलता हमारे यहाँ, जो चलता है वो यही चलता है। मेरी बड़ी भाभी है ना, तो वो ड्राइविंग सीखती थी आज़ाद फाउंडेशन में। तो उसमें क्या था, उन्होंने हाफ पे ना ड्राइविंग छोड़ दी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और पापा ने मना कर दिया था। लेकिन फिर पापा का ये कहना था कि अगर तेरी भाभी ने छोड़ा है तो अब तू कर ले, कि मतलब तू सीख जा, हमारे घर में कोई एक तो होगा जो लाइसेंस लेकर के बैठेगा। मैंने कहा ठीक है। पर मुझे क्या है, स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे को ना लोगों को देख के अच्छा लगता था कि यार वो कार चला रहा है, ऐसे चला रहे, मैं भी गाड़ी खरीदूँ। खुद का एक शौक़ पाल लिया था मैंने गाड़ी का। तो मैंने कहा ठीक है पापा, मैं गाड़ी सीखूंगी, लेकिन एक शर्त पे सीखूंगी, अगर आप गाड़ी दिलाओगे तो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिला दूंगा। अब मैंने गाड़ी आज़ाद फाउंडेशन में बहुत शिद्दत से सीखी। 8 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर मेरा लाइसेंस निकल के रेडी हो चुका था, बल्कि मेरी एज भी नहीं हुई थी। मतलब मैंने कितना मई में ज्वाइन किया था, और मेरे जो आधार कार्ड की डेट है वो जून में 18 की हो जाती है, और वैसे 1 साल लेट है वो, यानी मैं 17 की होती हूँ। तो जून में मेरा लाइसेंस का उन्होंने वो करवा दिया, जो भी भरते हैं ना फॉर्म वगैरह पूरा फिल कर दिया। नवंबर में मेरा लाइसेंस निकल कर आ गया। पहले टेस्ट में मैं 2 सेकंड से रिवर्स एस में फेल हो गई, सेकंड टेस्ट में मैं पूरा फाइनल हो गया, मैं पास हो गई। उसके बाद मैंने सर को बोला कि ऑन द वे आप कब भेजने वाले हो सर, कि मुझे हाथ साफ़ करनी है, मुझे गाड़ी लेनी है। उन्होंने ऐसे कर करके मेरे पूरे 9-10 महीने खींच दिए, मुझे ऑन द वे नहीं भेजा, और मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी हो गई थी उस टाइम। फिर धीरे धीरे करते करते मेरी ड्राइविंग जब हुई, उन्होंने कहा मैं जॉब लगवा रहा हूँ तुम्हारी। मैंने ठीक है सर लगवा दो, नहीं लगवाई। फिर आ गया कोविड, तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप मेरी गाड़ी दिलाओ, वो जॉब लगवा नहीं रहे, मुझे मेरी गाड़ी अब चाहिए। तो पापा कह रहे बेटा अब कोविड आ गया, और मेरे पापा कोई बिजनेस कर रहे थे तो उसमें उनका हो गया लॉस। अब वो लॉस हो गया तो अब मुझे रुकना पड़ गया मेरी गाड़ी के लिए। अब उनके पास 20,000 रुपये ही पड़े थे, और एक लड़की होती है ना स्कूल ट्यूशन या कॉलेज वाली, तो थोड़ी बिगड़ेली होती है, वैसी मैं भी थी कि नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, अब भी चाहिए। तो उन्होंने मतलब 20,000 रुपये ला के रखे और बोला जाओ अपनी गाड़ी ले आओ। फिर मैंने उस दिन अपने घर पे देखा कि कोई आया हुआ था जो पैसे मांग रहा था। मैंने उनको वो पैसे दिए, मैंने कहा अब आप उनको दो, अब मैं अपने आप जॉब करूँगी, अपना कर लूँगी। फिर मैंने 1 साल 24 आवर्स की जॉब करी। उसके बाद दिल्ली में ना अरविंद केजरीवाल सर ने वो निकाली थी स्कीम कि DTC बस में लेडीज़ ड्राइवरों की भर्ती चालू है, जिसके लिए आप हैवी लाइसेंस बनाओ और जॉब करो। तो पापा ने मुझे कहा तेरे पास अब चांस अच्छा है, अब तू कमा भी रही है, सैलरी भी अच्छी आ रही है, तो तेरी कार भी ले सकते हैं। एक काम कर, हैवी लाइसेंस निकाल, बैच निकाल और डिस्काउंट पे गाड़ी निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है, हैवी लाइसेंस निकाला। वहीं बुढ़ाड़ी वाले सर लोगों ने क्या किया, ये DTC में मेरा फॉर्म भर दिया, और BLR लॉजिस्टिक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। और इन लोगों ने भी उनको मतलब ऑफ़र भेजा कि हमें 10 या 40 वुमेन्स चाहिए जो हमें कंटेनर के लिए ड्राइवर चाहिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप महाराष्ट्र जाना चाहोगी। मुझे पता ही नहीं था महाराष्ट्र पुणे में भी इतनी पढ़ी लिखी लड़की, बताओ अनपढ़ से भी गई गुजरी थी, सच में नहीं पता। अब जब सर का कॉल आया अचानक, मैं बैच की तैयारी कर रही थी, प्रिंसिपल ने कहा कि क्या आप महाराष्ट्र में जाने के लिए अवेलेबल हो। मैंने सर ये महाराष्ट्र का है, तो कह रहे पुणे में। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर। तो मेरे घर पर सबने मना कर दिया, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, 40,000 रुपये सैलरी प्लस में रहना खाना और ट्रेनिंग भी यही प्रोवाइड कर रहे थे। तो मेरी फैमिली ने सबने मना किया, पापा मम्मी ने कि तुझे नहीं जाना। ये मेरा भाई बैठा है सपोर्टर, इसने कहा तू जा,
काम मत करियो, तू घूम कर रही हो, छोड़ दियो। जैसे अपॉर्चुनिटी है, खुद के पैरों पे जा रही है, घूम के आएगी, अच्छे से काम करेगी। मैंने कहा ठीक है, पापा मम्मी को मनाया, वो मान गए। एक हफ्ते बाद हम राजस्थान गए, हम 6 वुमेन आई थी यहाँ पे, तो 10 दिन की ट्रेनिंग मिली थी। उस टाइम अगर आप मेरी हेल्थ देखते तो आप भी बोलते कि अगर कोई फूंक मारेगा तो ये लड़की उड़ जाएगी, ये गाड़ी कहाँ चला पाएगी। अभी मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। उस टाइम 40 फीट का कंटेनर, जब ऐसी डब्बा गाड़ी थी, ट्रोलर था ही नहीं, सिर्फ मुंडी थी, तो सर कहते हैं कि ये वाली गाड़ी चलानी है। तो मैं तो वहाँ से भाग रही थी, सर मेरा हो लिया काम, अब नहीं चला पाऊंगी मैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम चला लोगी, तुम चलो बैठो। फिर हम गए, जब बैठे तो आप मानोगे नहीं, उसका मेरे से गियर नहीं लगता था। मैं 2 हाथ से गियर लगाती थी और क्लच दबा के सर के सपोर्ट से। 2 दिन के बाद वो गाड़ी मेरे हाथ पे ऐसी जम गई जो मैं आज तक चला रही हूँ, और बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है। और मेरे को मतलब किसी का ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे रास्ते में हर इंसान सपोर्ट करता है। मेरी कंपनी भी सपोर्ट अब करती है। In the second part of this feature next Sunday, we will learn more about the lives and journey of these women drivers, including the experience on the highways. Plus, we will see them drive Aisha's range of trucks on the test track, a completely different experience for them with no traffic and no cops pulling them over. You are watching Trans India, real people, real emotions. Make sure to come back next Sunday to see the women drivers in action. Until next Sunday, stay safe and drive safe. Jai Hind.